Hello everyone, welcome to Pitambra Educators. In this video, we are going to discuss competency based questions for class 10th IT students. We know that in section C, competency based questions will be asked. There will be 7 questions from which we have to attempt 5 questions. So competency based questions means a situation will be given and देन इट विल बी आस्क कि इस सिचुएशन में ओपन ऑफिस राइटर का या फिर स्प्रेडशीट का कौन सा फीचर यूज़ होगा और हाउ शी इज़ गोइंग और ही इज़ गोइंग टू सॉल्व दिस सिचुएशन. So we should know all the concepts of digital documentation unit and spreadsheet unit. And as we have discussed in previous video कि हम database management system वाली जो unit है उसे skip भी कर सकते हैं because हमारे पास choice होगी. So let's discuss the first question. Sonia is a typist. She has to often create resume of different persons. She wants that general format of resume should automatically appear on document whenever she opens a new document. So for example, name should be there, then educational qualification का जो table होता है या column होता है that should be there, and she just has to fill the entries for different persons. तो हम कौन सा फीचर यूज़ करते हैं राइटर का सो दैट वेन एवर वी ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट तो ये सारी चीज़ें पहले से ही हों जो भी जनरल टेक्स्ट है. सो लेट्स सी द ऑप्शंस. स्टाइल, ऑटोमेटिक, एंड थर्ड ऑप्शन इज़ टेम्पलेट, फोर्थ इज़ ऑल ऑफ द अबव. सो वी नो दैट टेम्पलेट इज़ द मॉडल फॉर एनी डॉक्यूमेंट. सो हेयर करेक्ट ऑप्शन इज़ टेम्पलेट. Now question 2. Shia is working on a highly formatted document. It means in that document too much formatting is needed. She has to apply a style to many different areas quickly. It means कि style क्या होता है, ग्रुप ऑफ फॉर्मेटिंग होती है. इट मीन्स कि यहाँ पे अप्लाई करना है, फिर ये पोर्शन छोड़ के ऐसे अलग जगह पे करना है. सो डिफरेंट एरियाज़ में करना है विच आर नॉन एडजेसेंट. विच ऑप्शन ऑफ ओपन ऑफिस राइटर शुड शी यूज़? So first option is format painter. So this option is not there in OpenOffice Writer. Next is fill format mode. So we know when we choose fill format mode तो हमें बार बार फॉर्मेटिंग स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. एक बार फिल फॉर्मेट मोड आइकन पे क्लिक किया एंड देन वी हैव टू जस्ट ड्रैग आवर माउस ओवर डिफरेंट टेक्स्ट जहाँ पे भी हमें सेम स्टाइल अप्लाई करना है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Question 3. Rashmi has stored marks of all unit tests of her class students in different worksheet. So for example, sheet 1 में unit test 1 के marks हैं, sheet 2 में आपके unit test 2 के marks हैं. Now for preparing result of term 1, तो term 1 के लिए सारे unit test के marks obviously add होके total होंगे. She has to take data from those worksheets and summarize. यहाँ पे summarize की spelling थोड़ी सी गलत है. Summarize इट इनटू अ सिंगल वर्कशीट. तो ये सारा डेटा जो है एक वर्कशीट में लाना है फॉर प्रिपेयरिंग रिजल्ट ऑफ टर्म 1. विच फीचर ऑफ स्प्रेडशीट शुड शी यूज़? तो इस केस में कौन सा फीचर स्प्रेडशीट का यूज़ होगा? फर्स्ट वन इज़ अपेंडिंग वर्कशीट, सेकेंड ऑप्शन मर्जिंग वर्कशीट, and third one is data consolidation. So we know that data consolidation means we bring data together from different worksheets into a single worksheet. Now question 4. Diya wants to invite all the employees of her company in the annual festival. She is using mail merge for the same. So she is using mail merge feature of the writer. She wants to see non-printing characters. Non-printing characters like paragraph break, line break जो हमें normally दिखते नहीं हैं while printing. Before finalizing the document, which shortcut key combination should she use for viewing the non-printing characters? तो non-printing characters को view करने के लिए shortcut key you should remember that is Ctrl plus F10. Now question number 5. A scorer has to calculate the total points for all the houses A, B, C, D in different games written in column randomly. So this means कि जैसे A हाउस है इसके मार्क्स यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं 2, ऐसे ही फिर B के लिखे हैं 3, फिर से A ने स्कोर किए 0.2, फिर B के 3, ऐसे ही C और D के भी जो है रेंडमली लिखे होंगे. C ने
1 स्कोर किया, देन डी ने 5 स्कोर किया, सी ने फिर से 9 स्कोर किया। ऐसे ही सेम कॉलम में है, ए के लिखे होंगे फिर से ए के 2। तो अब इनका हमें क्या करना है, स्कोरर हैज़ टू कैलकुलेट टोटल पॉइंट्स फॉर ऑल दी हाउसेस। तो लाइक ए का यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाना चाहिए, ए के टोटल मार्क्स जो भी हैं, फिर बी आए और उसके टोटल मार्क्स आ जाए, देन सी आए उसके टोटल मार्क्स आ जाए, और फिर इनका ग्रैंड टोटल भी आ जाए एट द एंड, यानी कि इन सब के जो पॉइंट्स हैं ए बी सी उनका ग्रैंड टोटल आ जाए। विच फीचर ऑफ स्प्रेडशीट विल बी यूज्ड फॉर द सेम। तो अगर हमें ऐसा करना होता है कि पहले डिफरेंट लेबल्स का टोटल करना होता है और फिर उन टोटल का भी टोटल करना है, यानी कि ग्रैंड टोटल करना है, तो इसके लिए कौन सा फीचर यूज़ होता है स्प्रेडशीट का, दैट इज़ सब टोटल। So here option B is the correct option. Now we'll see the next question. Question number 6. Ritesh has purchased a car which cost 10 lakh in loan at a fixed interest of 12%. तो यहाँ पे लोन अमाउंट है आपका 10 lakh एंड इंटरेस्ट भी जो है फिक्स्ड है। तो ये लोन अमाउंट फिक्स्ड हो गया और इंटरेस्ट आपका फिक्स्ड हो गया, दैट इज़ 12%. नाउ मैनेजर टोल्ड हिम टू पे अमाउंट EMI ऑफ अमाउंट 50,000। तो उन्हें हर मंथ जो है 50,000 पे करने हैं जिससे कि लोन अमाउंट कंप्लीट हो जाए इन 5 years. बट रितेश वॉन्ट्स टू नो दैट इफ़ ही पेज 1 lakh EMI पर मंथ, अगर वो 1 lakh EMI पे करेगा देन व्हाट विल बी द चेंज इन ईयर्स। तो ये दोनों वैल्यू फिक्स्ड है और उसका गोल है कि वो यहाँ पे 50,000 पे करे जो कि किसी और ने सेट किया है। अब वो चाहता है चेंज करना अपने टारगेट वैल्यू को जो कि हो जानी चाहिए अब 1 lakh. He wants to know that if he pays 1 lakh EMI then what will be the change in years. तो ईयर पहले अभी 5 है, अब इसमें चेंज हो सकता है, यानी कि ये वेरी कर सकता है ईयर्स अकॉर्डिंग टू द EMI. तो जब आपको पता होता है कि हमें ये वैल्यू मिलनी चाहिए और एक चीज़ उसमें चेंज हो सकती है, तो इसके लिए स्प्रेडशीट का कौन सा फीचर यूज़ होता है, दैट इज़ गोल सीक. इसका मतलब होता है कि जब हमें टारगेट वैल्यू पता है या फिर गोल पता है और उसके अकॉर्डिंग एक इनपुट वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, सो दैट विल बी गोल सीक. तो इसे आप डिटेल में पढ़िएगा क्योंकि इससे अगर क्वेश्चन आया तो आपको पता होना चाहिए कि गोल सीक क्या है और सॉल्वर क्या है, क्योंकि गोल सीक और सॉल्वर में थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं स्टूडेंट्स. नेक्स्ट इज मैनेजर ऑफ अ कंपनी हैज़ शेयर्ड द वर्कशीट with his team members to review. He wants to see the following information in reviewed spreadsheet: data changed, when the change was made, who made the change, and in which cell change has occurred. सो मैनेजर ने क्या किया है, अपनी जो भी वर्कशीट थी वो अपने एम्प्लॉयज़ को रिव्यू करने के लिए दी है कि जो भी वर्कशीट में सेल्स में डेटा है वो सही है या नहीं है. तो इन केस अगर कोई एम्प्लॉय या टीम मेंबर जो है चेंज करता है किसी भी सेल कंटेंट में, सो मैनेजर वांट्स टू नो कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, किसने चेंज किया है और कब किया है. विच फीचर ऑफ स्प्रेडशीट टीम मेंबर शुड यूज़. तो अगर टीम मेंबर्स को इनेबल करना पड़ेगा ऐसा कुछ फीचर वर्कशीट का जिससे कि मैनेजर चेंजेस देख पाए, तो कौन सा फीचर होता है, यू शुड नो दैट इट इज़ रिकॉर्ड चेंजेस. यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है आप लोगों को कि ट्रैक चेंजेस होगा या रिकॉर्ड चेंजेस होगा, बट ऑप्शन इज़ रिकॉर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. दिस क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 7. इफ़ टीम मेंबर्स फॉरगेट टू रिकॉर्ड द चेंजेस. तो जैसे कि हम देखा कि जो मैनेजर है वो चाहता है कि चेंजेस उसे दिखें कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, बट अगर टीम मेंबर्स जो हैं रिकॉर्ड चेंजेस वाला जो ऑप्शन है उसे इनेबल करना भूल जाते हैं, तो क्या होगा, स्टिल देयर इज़ अ चांस टू फाइंड द चेंजेस. तो अभी भी चांस है कि जो मैनेजर है उसे पता चल जाए कि क्या चेंजेस हुए हैं, बट उसके लिए उसके पास ओरिजिनल वर्कशीट होनी चाहिए. विच फीचर ऑफ स्प्रेडशीट विल हेल्प हिम टू डू द सेम. तो स्प्रेडशीट का कौन सा फीचर है जिसको इनेबल करके आप चेंजेस का पता कर सकते हैं इफ़ समवन हैज़ फॉरगॉटन टू इनेबल द ऑप्शन ऑफ रिकॉर्डिंग द चेंजेस. सो लेट्स सी द ऑप्शन: सिनेरियो, रिकॉर्ड चेंजेस, मर्जिंग डॉक्यूमेंट्स. लास्ट वन इज़ कंपेयरिंग डॉक्यूमेंट्स. सो दिस लास्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट कि हम जो भी हमारे पास रिव्यूड वर्कशीट्स आई हैं उसे ओरिजिनल वर्कशीट से कंपेयर करके देख सकते हैं कि क्या चेंजेस हुए हैं. मतलब हम ऐसे मैनुअली नहीं कंपेयर करते हैं, वी हैव टू क्लिक ऑन दिस ऑप्शन कंपेयर
तो आपकी खुद से क्या होता है, चेंजेस जो भी अकर हुए होते हैं दैट विल बी हाईलाइटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. Manisha wants to create a database for her company. Which software can she use for the same? So Microsoft Access, yes, it is a database management system software. Next, SQLite, this is also a DBMS. Microsoft SQL Server, this is also a DBMS. So here option will be, correct option will be all of the above. Now question number 10. Ritika is working on her school project. She wants to insert an image in her document. तो उसे document में image insert करनी है. Her teacher told her that in document open office, तो open office writer का document है, an image can be inserted using dash ways. तो आप open office writer में कितने ways से image insert कर सकते हो. So you should know कि कौन कौन से method है और कितने methods हैं. So here correct option will be C option, that is 5 methods. So this much in this video. We have discussed 10 MCQs based on competency based questions for section C. इससे पहले भी हमने competency based question डिस्कस किए हैं. So watch that video also और competency based questions की प्रैक्टिस करिए. Thank you for watching this video. If you find this video helpful for your preparation of examination, then please like and share this video और comment करके बताइएगा. And please subscribe our channel. All the best for your examination.